and automatically without studying boring and confusing grammar rules in just 30 days. Here's your host, the best and #1 English trainer of India and the living legend of natural language learning, Amol Deshmukh. This is the eSwayam English speaking system. We're helping students to speak English quickly, easily, and automatically without studying boring and confusing grammar rules in just 30 days. Here's your host, the best and #1 English trainer of India and the living legend of natural language learning, Amol Deshmukh. Hey, this is Amol from eSwim English. I welcome you all guys from the bottom of my heart for today's live session. In today's session, I'll be giving you my 3 simple secrets to acquire English in record time. Even if you're super busy, you will be able to speak English fluently and confidently, and words will pop out of your mouth very quickly, easily, and automatically. You will not realize it. This will happen. Like exactly you have acquired your mother tongue. I'm going to give you step-by-step action plan to acquire exactly the way you have learned your mother tongue. Okay. Before moving ahead, let me just know in the chat box that are you guys getting my voice clearly, perfectly? Is there are you guys getting my voice clearly? Please, someone, please type in the chat box. I have enabled chat box for everyone. All right. Okay. So let me just share my screen so that we can get started. So again, today I'll be giving you, as I told you that, I'll be giving you my 3 simple secrets to acquire English in record time. You don't need to study or analyze any grammar rules. You don't need to memorize vocabulary words, and words will pop out of your mouth and you will not realize it. Now, would you be comfortable if I keep speaking in English like that? Or do I need to switch to Hindi? Should we continue in English? Okay. All right. Okay. A few people are saying, okay. So believe me, this is the fastest method to acquire English in record time. Okay. Yes. Few people are saying, so please talk to Hindi. We are comfortable with English. Okay. So I'll be using Hindi and English. Don't worry. All right. So this is the fastest method to acquire English in record time. I tell you what, you don't need extra time. You just need focused time and right guidance. All right, so you're going to get that. Now, how many of you are agreed on fluent English is equals to high paying job? Fluent English will give you high paying jobs. How many people agree with this? Type A in the chat box if you are agree with this. কেমন আছে মেহবুব Bengali, Hindi? Agree. All right. The one thing I want to tell you is that very important thing, 87% of job posting required fluent English speaking, and MNCs have prioritized this skill. Did you know that? Did you know that the corporate world fact, 92% of the global leaders says that English plays critical role in your career success? How many of you agree with this? Did you know that unspoken truth? Your English doesn't define your potential, but it can limit your opportunities. It doesn't matter whether you have skill or not, but if you are not able to convey your message or about what you have in your knowledge, if you're not able to convey or explain it to others in English, people are going to assume that you're not that perfect in your work, in your skill, right? So this is the unspoken truth. Now, if you stay till the end of this meeting, till the end of this webinar, I'm going to give you my 4
big surprises. The book which I've written, the Natural Approach book, I'll be giving you free PDF. Also, I'll be giving you my audiobook for free if you stay till the end of the meeting. Then I have created amazing personality development course. I'm going to give it to you for free. Then email writing course, and then the public speaking course. I'm going to give it all for free if you stay till the end of the meeting. Now, moving further, introduce yourself formally, professionally in the chat box. Let me know in the chat box, like, where are you from? Type your city name and your state name. Yes, please go ahead and introduce yourself. Till the time, I'll just send final message to the people, those who have not joined. Yes, I'll be checking it. Don't go away. And those people who have answered, like their city and state name, I want you to ask another question. What is the reason? Why do you want to learn English? I mean, is there any special reason that you can invest your money, time, and energy and all the stuff? What is that your burning desire that you want to counter English? If you have that generic or surface level reason, you will end up on giving up very quickly and easily. So what's that biggest fear, you can say, or what's that real purpose that made you to join this spoken English webinar? Just a minute. I'm done with this. All right. Okay. So let me check. Patna, Samastipur, Mithilesh, to work in a corporate, success, Sajib Jana, Gandhari Bhim for upskill. I'm from Agra, Arshad Ali. All right, for job. All right. Anwar Begum, Hyderabad, Adesh Rathod from Indore, Mumbai, Ranjit Rao Patil. I think you have purchased the course, and why the hell you have joined here? I want you to get the access from the application. I want you to spend your college time in the application with the course. So if you just still want to be here, Muhammad Asif, I want to preparing for Duolingo. Okay, great. Mehboob Ghazi. All right. Sumi Chetri. Okay. Gayatri Kapoor, Ajay, Seema, Sanjeev, Mithilesh. All right, everyone is typing. You guys are really great. Dhanbad, Ritesh, Ranjit Patil. Okay. Aryan Sharma, hi. Swati Rawat, Swati Rauti, hi. Okay, Ritesh Singh, Dhanbad. All right. So let's get the guns blazing. Okay. In today's session, as I told you that you are going to discover, I will be not telling you what to do. You will discover how to learn, how to acquire English without saying boring and confusing grammar. Just 3 simple steps, okay? Even if you are super busy. Now, here is the step-by-step action plan. Here are my 3 simple steps. First thing first, you have to identify and sort out whether it is the correct method or not. If this is the perfect method or not. This is the thing you have to sort out and you have to discover. This method is not for everyone. People who love grammar study, this method is not for them. Second secret, you have to remove your morphological confusions from your head, right? So, वो जो chemical लोचा आपके brain में है, वो निकालना है. Like मैं अभी अगर 2 साल की बच्ची को और आपको इंग्लिश सिखाने बैठूंगा ना, तो आपके ब्रेन में जो केमिकल लोचा होगा ना, दिस विल होल्ड यू बैक. और वो मॉर्फोलॉजिकल कंफ्यूजन जब तक निकलेगा नहीं,
तब तक आप उस बच्चे की तरह उस स्पीड से आप इंग्लिश बोलना नहीं सीखेंगे। एंड दिस इज ट्रू, दिस इज फैक्ट, चाहे आप मानो या ना मानो। एंड देन हियर कम्स द थर्ड सीक्रेट, ओके? You have to acquire English with eSWAM's English speaking system. I'm going to give you a small demonstration trailer. How will exactly I'll be teaching you throughout this journey. So इस demonstration में, इस trailer में आपको पता चलेगा कि English को exactly acquire करने के लिए क्या क्या step by step आपने action plan करना चाहिए। And आपको ये trailer बड़ा पसंद आएगा, अमेजिंग, जिसमें आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस होगी। देन विल स्टॉप योर ट्रांसलेशन, ओके? सो आपका इंग्लिश में सोचने की एबिलिटी, यू विल directly think in English. There will be no translation. You will improve your pronunciation at the same time. Vocabulary words will stick into your brain, I mean, for the longer time. You'll improve that contextual awareness and sense of correctness. And for God's sake, what the hell is this sense of correctness? These fake human translator and human dictionary teachers, so-called teachers, our education system, school, colleges, and universities are never going to get this sense of correctness in next 40 years. They really don't know what exactly is this. उनको तो बस वो ग्रामर की मेथड में उनको बच्चों को उलझना, कंफ्यूज करना, और उनको, मुझे तो लगता है कि कंफ्यूज करने में बड़ा मजा आता है। बट ये 3 सिंपल स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे, आई एम श्योरली सेइंग दैट कि आप रिकॉर्ड टाइम में इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। आई एम सॉरी गाइस, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है। ऑलराइट, सो now who's this webinar for? If you could understand English, but if you are not able to speak English, then this is perfect webinar, or this is the perfect class for you. अगर आपको, अब मेरी बात को ध्यान सुनना, there are 3 kinds of people. Number 1 category, people who really don't understand what exactly people are saying to them. Okay, so they don't know what exactly to say. पहली चीज, लोगों को समझ में नहीं आता है कि exactly क्या बोल रहे हैं सामने वाला इंसान, और वो फिर बोल नहीं सकते। दूसरी कैटेगरी के लोग वो होते हैं कि जिनको सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है वो समझ में आता है, लेकिन वो उन्हें आंसर नहीं दे पाते। थोड़े से कंस्ट्रक्शन उनके सेंटेंसेस के अच्छे होते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से, मतलब वो शार्प नहीं होते हैं, या फिर वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होते हैं। और तीसरी कैटेगरी के लोग वो होते हैं कि जिनको सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है वो समझ में आता है, वो बोल भी लेते हैं, बट आउट ऑफ फियर ऑफ रिजेक्शन, व्हाट विल पीपल थिंक अबाउट मी, मेरी इंसल्ट होगी, दे विल जज मी, दे विल लाफ ऑन मी, या फिर बहुत सारे क्लाइंट है या फिर कस्टमर है, बॉस है, उनके सामने मेरी इंसल्ट होगी, इस डर की वजह से वो बोलना आता है लेकिन वो चुप रह जाते हैं। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आप कौन सी कैटेगरी में हो, फर्स्ट, सेकंड और या थर्ड, कौन सी कैटेगरी में हो आप? राजू राजस्थान, अनवर बेगम, यस, आर वी कनेक्टेड गाइस? आर वी कनेक्टेड? सुमी फर्स्ट, अनवारी बेगम सेकंड। आप लोग, आप मुझसे कैच कर पा रहे हैं ना? मैं अगर इंग्लिश में ही बोलता रहूंगा ना तो शायद आप मुझसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, और ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको। चलिए मैं इसको थोड़ा सा सिंपल इंग्लिश और हिंदी में रखता हूँ, क्योंकि कुछ कॉम्प्लेक्स जो टर्मिनोलॉजी है या फिर जो साइकोलॉजिकल चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ ना, वो ज्यादा अच्छे आपको हिंदी में कनेक्ट कर पाएगी। सो आज का डे जो है ना, वो सिर्फ आपको समझने के लिए है, सीखने के लिए सीक्रेट नंबर 3 में मैं आपको सिखाऊंगा। सिर्फ आपको चीजें समझनी है कि आज तक आपके साथ क्या गलत होता आ रहा था, और उसी तरीके से अगर आप गलत मेथड से करते रहोगे तो 50-55 साल तो आपके गए, आगे के भी, जैसे अब तक तो गए, अगले 50-55 साल भी जाएंगे लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आएगी। ऑलराइट, सो फर्स्ट प्लीज हेल्प मी, आर्यन शर्मा, आई कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग बट कैन स्पीक। ऑलराइट, प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, ओके? रिक फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि कभी you know the words, but when you are trying to speak English, you just get lost in the vocabulary words. आपको words ही याद नहीं आते, and you really don't know what word and where to use these words. Like correct word की orders आपको समझ में आती, big red car, car red big car, इस तरीके का word order भी आपको समझ में नहीं आता कि exactly कौन सा word कहाँ पर जाना है। फिर वो helping verbs हो, models हो, या फिर sentence के आगे के और पीछे के पार्ट्स क्यों ना हो।
क्या आप वोकैबुलरी वर्ड्स भूल जाते हैं? बोलना शुरू कर देते हो तो एकदम से शुरू तो कर देते हो पहले 2-4 सेंटेंसेस, लेकिन फिर बाद में आप फिर सूझता नहीं आपको कुछ और आप चुप हो जाते हो। गलती होने का डर लगता है या फिर आपको लगता है कि कोई आपको जज करेगा। क्या ये सारी चीजें आपके साथ होती है? सुमी, आई कैन अंडरस्टैंड इजी इंग्लिश, अगर कोई मुझसे स्पीड में कुछ बोले तो समझ में नहीं आता। ठीक है, सो सिंपली सुमी देखो, आपका जो प्रॉब्लम है ना बहुत ही सिंपल है, अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है। अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी फास्ट होगी तो आपको प्रोसेसिंग करने में टाइम नहीं लगेगा, और टाइम नहीं लगेगा आपको प्रोसेसिंग करने में तो आपको आउटपुट भी मिलता है। सिंपल लॉजिकल चीज है। समझाता हूँ। देखो, मैं अगर आपसे हिंदी में कितनी भी धीरे में आवाज में और कितने भी फास्ट बोलूं, अगर आपकी लाइफ के कुछ सवाल पूछूंगा ना तो आप मुझे समझ सकती हो। क्यों? क्योंकि आपकी हिंदी की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर है। दुनिया की आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, हमारे केस में तो इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश की आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर है, तो इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग जब यहाँ पर आएगी ना तो आपकी प्रोसेसिंग फास्ट होगी। प्रोसेसिंग फास्ट होगी तो आपको आउटपुट भी मिलेगा। सिंपल लॉजिकल चीज है। क्या आज तक आपको किसी ने ये बताई, किसी भी यूट्यूब टीचर या फिर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी किसी बुक में ये लिखा हुआ आपको बताया है? पहले तो ये चीज आपको पल्ले पड़ी है या नहीं? समझ में आई? एक्सीडेंटली आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया। क्या नाम है आपका? हाँ सुमी, आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया। और ये जो चीज है ना ये बड़ी मिसिंग चीज है। भाषा के अननेसेसरी टुकड़ों के बारे में, अनइंपॉर्टेंट चीजों के बारे में आज तक आपने स्टडी की है? अंडरस्टैंडिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ये बैकअप द माइंड, ये नेचुरल प्रोसेस है। ये कुदरती तरीके से कोई भी लैंग्वेज को सीखने की एग्जैक्ट प्रोसेस है, मेथड है। लेकिन इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे? सो आज का ये जो क्लास है ना बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपको नेचुरली, जैसे आपने आपकी मदर टंग एक्वायर की है वैसा करने का। राइट? सो अब ये जो सेशन है ना कुछ लोगों के लिए नहीं है। अगर आप सिर्फ आपकी इंग्लिश की राइटिंग इंप्रूव करना चाहते हो ना तो ये सेशन आपके लिए नहीं है। अगर आपका गोल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है तो ये सेशन आपके लिए नहीं है। अगर आप सिर्फ ग्रामर रूल्स को एनालाइज करना चाहते हो लेकिन बोलना नहीं चाहते तो ये सेशन आपके लिए नहीं है। अगर आप सिर्फ ग्रामर रूल्स में मास्टर होना चाहते हो तो ये सेशन आपके लिए नहीं है। देखो, ये बड़ा कॉन्फिडेंस और जिगर वाला काम है। मैं इतने कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ, वाई? बिकॉज मुझे मेरे रिसर्च पर ट्रस्ट है। मैं सिंपली कह रहा हूँ आपको कि इंग्लिश बोलने के लिए कोई भी आपको ग्रामर स्टडी करने की जरूरत नहीं। इतनी सी भी ग्रामर स्टडी करने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी आएगी 1.5 साल की अभी, मैं उसे इंग्लिश बोलने के लिए क्या ग्रामर स्टडी कराऊंगा? नहीं। ठीक है, धीरे धीरे चीजें सारी जो है ना वो अनफोल्ड होगी आपके सामने। अगर आज आपके पास सिक्योर जॉब नहीं है, अगर आप जॉब पाना चाहते हो तो इंग्लिश बहुत जरूरी है। यह सही वक्त और सही जगह है इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आपकी लाइफ में लिमिटेड ग्रोथ है या फिर मिस्ड हो गए आपके प्रमोशन या फिर कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये सही जगह है। आज तक आपने कितने सारे यूट्यूब टीचर्स, कितने सारे लाइव आपके सामने, कितने सारे यूट्यूब टीचर्स या फिर पर्सनली भी आपकी इन लाइफ में अपने कितने टीचर्स को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज को देखा होगा। बट आज का ये जो सेशन जिस तरीके से हो रहा है ना, ऐसा सेशन आपको दोबारा नहीं मिलेगा। सो पे अटेंशन। अगर आप में फियर ऑफ मिस्टेक है कि मुझसे गलती होगी और लोग मुझे जज करेंगे, एंग्जाइटी होती है, आपको डर होता है या फिर एक मेंटल स्ट्रोक आ जाता है कि यार ग्रामेटिकली करेक्ट बोलने के लिए जो आपके दिल में या फिर आपकी जो मेंटली जिद्दोजहद चलती है ना, इसको ब्रेक करना है तो ये सही सेशन है, ये सही वक्त है। अगर आपको दुनिया ने इग्नोर्ड फील करवाया है, आपको कभी मेन स्ट्रीम समझा ही नहीं, आप ठीक है चल कोई नहीं है तो फिर आपको है, इस तरीके का अगर इग्नोर्ड फील कराया है आपको तो ये सही जगह है। रिवेंज लेना नहीं है किसी से, अपने आप को साबित करना है, प्रूव करना है। इसके लिए आपको ग्रामर ट्रांसलेशन के लूप से निकलना है। आज तक आपको ग्रामर और ट्रांसलेशन के इस चक्रव्यूह से ही, मतलब इतना ये जो दुख दर्द है ना, ये सब आपका ग्रामर ट्रांसलेशन के मेथड का ही देन है। हमेशा आप ग्रामर स्टडी की है और ट्रांसलेशन में फंस जाते हो। इस चक्रव्यूह को आज तोड़ना है। अर्जुन, सुनो, आज आपको इस ग्रामर ट्रांसलेशन के चक्रव्यूह को तोड़ना है। मैं भगवान श्री कृष्ण जैसा नहीं, लेकिन मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। चलना ना चलना में इस मेथड से, यह आपका काम है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आई नो, मैं जानता हूँ कि आप लाइफ में बहुत बिजी होते हो, आपके पास टाइम नहीं होता है, बट मैं जैसा कहूँगा वैसा अगर आप डेली का हाफ एन आवर, 45 मिनट या फिर 1 घंटा भी देते हैं
जितना ज्यादा वक्त दोगे उतनी जल्दी आप इंग्लिश फ्लुएंसी को हासिल करोगे। लेकिन मिनिमम 1 घंटा अगर आप देते हैं, आई प्रॉमिस यू, आई गारंटी यू दैट यू विल बी हैविंग दैट perfect American accent within 42 days, right? So, why I'm telling you that? Learning to speak English is not about the talent. It's all about the right method. How many of you agree that? तो मैंने कहा है कि सर प्लीज डोंट माइंड, अगर कोई आप एक काम करिएगा, आपके जो क्वेश्चन है ना हम आखिरी में ले लेते हैं, ठीक है? डोंट वरी, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। बट आप अभी फिलहाल मैं जो चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ ना, तो वो समझ लीजिए, उसके बाद में आपके Q&A सेशन ले लेंगे, डोंट वरी। ऑलराइट, अग्री करते हो? ऑलराइट, सो व्हाई शुड यू ट्रस्ट मी? इतने सारे स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज सब बोल रहे हैं, और मैं अकेला बोल रहा हूँ कि आपको उनकी मेथड जो है उससे कभी इंग्लिश नहीं आएगी। व्हाई आई एम सेइंग दैट एंड व्हाई शुड यू ट्रस्ट मी? Let me give you my small introduction. My name is Amol. I live here in Chhatrapati Sambhajinagar. I'm a founder of eSwam English, and I'm also a founder of Vidyavan Shikshan Prasarak Mandal, Aurangabad. I can speak 8 regional languages and 3 international languages: Chinese, Japanese, and Spanish. I have 12 years of formal research and studies in natural language learning. I have discovered this natural language learning method. Actually, I have not discovered this natural language method. My guru, Dr. Stephen Krashen, is the founder and he's a pioneer, and he has discovered this natural language learning system. I'm coordinating with Southern California University, Oxford University, and British Council of English Education. And through this, my award-winning method, I have helped more than 25,000 of working professionals, students, housewives to transform their career into extraordinary career. How did I do that? I have written this special book जिसे द नेचुरल अप्रोच नाम से मैंने लिखा है, जिसमें आपको कोई भी ग्रामर स्टडी किए बगैर एग्जैक्टली ग्रामर रूल में बिना उलझे इंग्लिश सीखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान इसमें है। ब्रिटिश काउंसिल का ये सर्टिफिकेट भी है। और ये मेरी छोटी सी फैमिली है, मैं, मेरा भाई, मेरे मॉम एंड डैड, और मेरे जो 4 लड़के हैं, 2 बेटी और 2 बेटियां, हालांकि 2 मेरे भाई के हैं, 2 मेरे हैं। तो ये मेरे रिसर्च टूल्स थे। मेरा बड़ा बेटा जो है वो 10 साल का है, और छोटी बेटी जो अभी लड्डू जो है वो 1.5 साल की है। तो सब पर मैंने एक फॉर्मली रिसर्च टाइप ही कंडक्ट किया है कि कैसे वो मदर टंग बोलना सीख रहे हैं, कैसे स्पीच प्रोडक्शन होता है। मेरी बेटी 1.5 साल की, उसको अगर ग्रामर स्टडी करवा के अगर इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा ना, यू विल नॉट बिलीव मी, बट उसे 50-55 साल तक इंग्लिश नहीं आएगी। जिस मेथड से आप स्टडी कर रहे हो ना, इस मेथड से अगर इस बच्चे को पढ़ाऊंगा ना, तो इसको इंग्लिश नहीं आएगी। लेकिन जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, वो पढ़ाने का तरीका नेचुरल है। और मेरी बेटी का भी इंग्लिश सीखने के लिए माइंडसेट और अप्रोच नेचुरल है। वो अप्रोच आपका नेचुरल माइंडसेट होना चाहिए, राइट? नाउ पहला सीक्रेट क्या है? करेक्ट मेथड। जस्ट बिकॉज मैं कह रहा हूं इसीलिए आपने आंखें मूंद कर ये थोड़ी ना मान लेना है कि हाँ भाई ये सर बोल रहे हैं तो सही मेथड है। नहीं, आंखें मूंद कर अगर किसी को अगर आप अपने सर पर बिठा लोगे, तो आप क्या कहते हैं कि वो बंदी बन जाओगे, किसी के गुलाम बन जाओगे। गुलामों की मानसिकता नहीं चाहिए। गुलाम अगर बनोगे तो आप जिंदगी में पीछे रहोगे। ठीक है, मैं जो कह रहा हूं वो आपको लॉजिकली अपनी बुद्धि की कसौटी पर चेक करना है, उसके बाद ट्रस्ट करना आपके ऊपर। ठीक है, सोच बदलनी है ताकि जिंदगी बदले। नाउ हेल्प मी टू अंडरस्टैंड, हाउ डिड यू लर्न योर मदर टंग? आपने आपकी मदर टंग कैसे सीखी? क्या आपने आपकी मदर टंग सीखने के लिए फॉर्मल ग्रामर स्टडी की? क्या आपको पढ़ना आता था, लिखना आता था आपकी मदर टंग बोलने से पहले? आई मीन स्कूल में जाने से पहले आपने बोलना सीख ली, या फिर स्कूल में जाने के बाद फॉर्मल स्टडी की? महबूब गाजी पता नहीं, आदर्श आदर्श कौन नहीं, राइट? चलिए मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं क्वेश्चन को। क्या आपने आपकी मदर टंग ग्रामर स्टडी करके की है? ग्रामर स्टडी की है? नहीं ना? ठीक है, आज मान लो मैं अगर आपको कहूं कि मैं आपको भेज रहा हूं तमिलनाडु, ओके? यस, मॉम एंड डैड को सुन सुन के आपने इमिटेट किया,
लिसनिंग से अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, अंडरस्टैंडिंग से प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग से आउटपुट मिला। पहले तो एक एक दो दो वर्ड्स में आप बोलना सीख गए, ठीक है। हालांकि वो भले बड़े अतरंगी प्रोनाउंसिएशन होते थे, लेकिन बच्चे जब मिस्टेक्स भी करते हैं तो वो अच्छे लगते हैं। बड़े मिस्टेक करते हैं तो वो मतलब इट डजंट लुक गुड, राइट। ऑलराइट, सो मैं ये कह रहा था, हाइपोथेटिकल सिनेरियो ले लेते हैं कि मानो आज आपको मैंने या फिर गवर्नमेंट ने ये कहा कि आपको तमिलनाडु जाना है, आपको दिए 5 लाख, ठीक है। मेरा स्पेसिफिकली पॉइंट सिर्फ ग्रामर स्टडी जरूरी है या नहीं, ये आपकी आंखें खोलना है। गवर्नमेंट ने कहा कि आपको 5 लाख सैलरी मिलेगी, आपको जाना है तमिलनाडु और वहां जाकर आपको तमिल सीखनी है। आंसर मी नाउ, क्या आप तमिल सीखने के लिए ग्रामर स्टडी करोगे? ग्रामर स्टडी करोगे सीरियसली? एग्जैक्टली उसी तरीके से नहीं ना, ग्रामर स्टडी तो नहीं करोगे, चाहे जो भी करोगे। वो तो बात की बात है कि क्या करोगे क्या नहीं, लेकिन ग्रामर स्टडी, मैं सिर्फ स्पेसिफिकली ग्रामर स्टडी पे बोल रहा हूँ, राइट। एग्जैक्टली इसी तरीके से मैं अगर आपको कहूँ कि गुजराती, बंगाली, मलयालम या फिर तमिल, तेलुगु, पंजाबी, मराठी, भारत की कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, तो क्या आप ग्रामर स्टडी करोगे? करोगे ग्रामर स्टडी? भारत की अगर कोई भी लैंग्वेज आपको सीखनी है तो क्या ग्रामर स्टडी करोगे? आंसर दो भाई साहब। चुपचाप, गधों की तरह चुपचाप अगर सिर्फ सुनोगे, लेजी रहोगे, तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ोगे। 3 तरीके के लोग ना जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। 3 तरीके के लोग। नंबर 1, लेजी, जो आलसी जो लोग हैं ना, वो जिंदगी में कभी आगे नहीं जाएंगे। अगेन, आप अभी इतने बिजी होते हो और आप इतने लाइफ में काम करते हो, तो मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि आप लेजी हो, राइट। दूसरी चीज है, जो लोग स्टूपिड है, मूर्ख है, बुद्धू है, जिनको समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। 1000 बार इनको अगर बोला गया ना तो उनके भेजे में कुछ नहीं जाता, बट उनकी सेंट्रल प्रोग्रामिंग जिस तरीके से होती है बस वही करते रहते हैं। ऐसे लोग जिंदगी में कभी सफल नहीं होता, कभी सफल नहीं होंगे। अगेन, ऐसे लोग जो है ना वो बड़े कम है, 1 या 1.5% ही। तो मैं मान के चलता हूँ कि 98% या फिर 99% लोग बाकी हैं। अब 99% में से 95% लोग ना लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो सकते, वो कभी लाइफ में इंग्लिश नहीं बोल सकते। और वो लोग है एरोगेंट। एरोगेंट लोग किसी की सुनते नहीं है। उनको मेरे जैसा कोई अगर बोलने लगेगा ना कि हाँ सच में आपको ग्रामर स्टडी करने की जरूरत नहीं है, कितना भी मैं अगर मतलब गला कितना भी फाड़ लूं, उनको यकीन नहीं होगा। और उनको मतलब वो, हाँ उनको एरोगेंसी होती है, एरोगेंसी होती है इस तरीके की। आओ बेटा इधर दरवाजा लगाओ, कि हाँ ये हमें सिखाए, लगा लो पूरा लगाओ। उनको इस तरीके से एरोगेंसी होती है कि हाँ ये सिखाएगा हमें, इतने सारे स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज, ये क्या पागल है क्या, ये सिखा रहा है तो, राइट। तो इस तरीके की एरोगेंसी उनमें होती है। ऑलराइट, नाउ ये मेरी बेटी है ओवी, ठीक है ना। जिस तरीके से मैं अभी इसको सिखा रहा हूँ ना, क्या मैं पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा? नहीं भाई साहब, समझो इस चीज को। उल्टा ग्रामर की ही वजह से आज तक आपको इंग्लिश नहीं आई है। सामने वाला इंसान अगर आपको बोल रहा है ना, तो आप सिर्फ इतना सुनते हो कि वो ग्रामेटिकली करेक्ट बोल रहा है या नहीं। और जब बोलने भी जाते हो ना, तो वो इंसान भी इतना ही सुन रहा होता है कि आप भी ग्रामेटिकली करेक्ट बोल रहे हो या नहीं। समझ रहे हो? मैं मेरे बेटों को, मेरे बच्ची को किस तरीके से सिखा रहा हूँ, वो सिखाने का तरीका नेचुरल है। मैं आपको थोड़ा सा डेमोस्ट्रेशन दिखाता हूँ कि मैं किस तरीके से मेरी बेटी को सिखा रहा हूँ। राइट, आर यू रेडी? आप जानना चाहते हो मैं किस तरीके से मेरी बेटी को पढ़ाना सिखा रहा हूँ और किस तरीके से आपको भी पढ़ाना सिखाऊंगा? ओके, सो आई कॉल इट इमर्शन। ओके, इसे इमर्शन कहा जाता है। इमर्शन यानी कि इंग्लिश कंटेंट के साथ डूब जाना। अब मेरी बेटी को मैं सिर्फ चीजों का नाम बोल रहा हूँ इंग्लिश में, एक्सपोजर दे रहा हूँ इंग्लिश में, ताकि वो वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर पाए। और उसके बाद मैं एक एक दो दो स्टेप में एक्शंस को ऐड करते जाता हूँ। लाइक लेट मी शो यू सम एग्जांपल। बेटा कैन यू say hi to all? Okay, can you show me your hands, please? Hi. Okay. Can you show me your fingers? Fingers. All right, these are your fingers. Okay, now can you show me your eyes? Eyes. Ah, how many eyes do you have? One or two? How many eyes?
2. All right. Okay, give me high five. Okay. Now, tell me, show me your nose. Nose. Where's your nose? Nose. And these are lips. All right. Show me your teeth. Show me your tummy. Show me your tummy. Tummy, tummy, tummy. All right. All right. Now say bye-bye. Say bye-bye. All right. Now let's go. मुझे क्लास करने दो. जाओ बेटा. Okay. Open the door and just go. Say bye-bye. Bye. Close the door. Okay. Okay. So इस तरीके से मैं पहले जो है ना वो सिर्फ वर्ड्स उसकी ब्रेन में प्रिंट कर रहा, जैसे कि दिस इज अ मोबाइल, mouse, water bottle, door, window. Okay. Once she understood what exactly the word is meaning, then I try to add few action elements like, beta, touch the door. Can you show me the door? Can you open the door? Can you close the door? Show me the ball. Throw the ball. All right. So इस तरीके के actions को, elements को add करने जाना होता है, और उसकी psychological mental ability को जो है ना वो भी देखना पड़ता है कि अगर वो डिप्रेस्ड है, अगर वो नाराज है, तो उस वक्त तो सिखाया नहीं जा सकता. राइट. जैसे कि अगर अभी आप स्कूल कॉलेज में जैसे थे कि आपको लाइन में बिठाया जाता था, आपको पैसिव एनर्जी लो करके, वो एनर्जी वैम्पायर टीचर्स जो है वो आपकी एनर्जी चली जाती थी. ऐसे सिचुएशन में जहां पर आपका फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, ऐसे टाइम में अगर आपको कुछ भी सिखाया जाएगा ना, तो वो आपके ब्रेन में कुछ भी नहीं जाएगा. सो मेथड पर ध्यान देने के बजाय ये ई स्वयं इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम जो है ना वो आपकी साइकोलॉजी एंड बिलीफ पर ज्यादा काम करता है. और अनफॉर्चुनेट है, नॉन लिंग्विस्टिक फैक्टर है कि साइकोलॉजी एंड बिलीफ, यानी कि आपका माइंडसेट किस तरीके से है, वो जाने बगैर सारे हमारे एजुकेटर्स जो है वो आपको मेथड आपके मुंह पर फेंक देते हैं. बस ये रैंडम डिसऑर्गेनाइज्ड, कई सारे यूट्यूब टीचर्स तो बस पता नहीं उठते हैं और बस वीडियो रैंडम डिसऑर्गेनाइज्ड ऐसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर वर्ड के वीडियोस बनाकर आपके मुंह पर फेंक देते हैं. उनको तो ये लगता होगा कि यार कल कौन सा वीडियो बनाओ, इतना भी सोचना पड़ता होगा, क्योंकि उनका कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है ही नहीं. ठीक है. तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया ना. राइट राइट राइट. सो आगे चलते हैं. एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो. आप में से कितने सारे लोगों को लगता है कि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर स्टडीज जरूरी है? आप लोगों के सामने मैंने एक पोल रखा है. आप लोगों के सामने मैंने एक पोल रखा है. आप क्या करिएगा, उसे फिल करिएगा. नो 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 नो. ऑलराइट. यस, प्लीज आंसर एवरीवन. कम ऑन, टेक एक्टिव, टेक पार्ट. ओके. ये रहे आपके सामने रिजल्ट. 96% लोगों को लगता है कि ग्रामर स्टडी करने की जरूरत नहीं है. वेल डन. आप लोगों ने चक्रव्यूह को, इस ग्रामर ट्रांसलेशन के चक्रव्यूह को भेदना शुरू किया है. इस मैट्रिक्स को, वो कहते हैं ना कि ये एक माया जाल है. हमारा एजुकेशन सिस्टम सबके लिए काम नहीं करता. वो मैट्रिक्स की खामियां आपके ब्रेन में, जहन में बैठ चुकी है, इसको निकालना है. आपने कंग्रेचुलेशन, वो सीखना शुरू किया है. ठीक है. जिन जिन लोगों को लगता है ग्रामर स्टडी जरूरी है, वो अपना हाथ यहाँ पर लाए. जितने भी 2 4 5% है, यहाँ पर लाइए अपना हाथ. प्लीज करिए, डू इट फॉर मी. यहाँ पर लाइए और एक टपली मारना. ठीक है. क्या टपली मारना और कहना कि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर स्टडी करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. ऑलराइट. चलिए आगे चलते हैं. अब हमें क्या करना होगा? ठीक है. ग्रामर स्टडी नहीं करनी है, लेकिन आपको आगे क्या करना होगा? हम इस मेथड में लर्निंग नहीं, एक्विजिशन पर ध्यान देंगे. ठीक है. अब लर्निंग और एक्विजिशन में क्या डिफरेंस है ये समझ लो. इतने दिनों तक आप जो स्टडी कर रहे थे ना वो लर्निंग थी. आज के बाद हमें एक्विजिशन करना है, एक्वायर करना है. एक्वायर की हुई चीजें मरते दम तक याद होती हैं. आपने आपकी मदर टंग लर्न की है या फिर एक्वायर की है,
भाषा के अननेसेसरी टुकड़ों के बारे में, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये मॉडल है, ये हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की कौन सी फॉर्म्स है, ये हो गए लर्निंग। इससे नॉलेज आपका बढ़ता है, आपकी एबिलिटी नहीं बढ़ेगी इससे। आपने आपकी मदर टंग लर्न की है या फिर आपने एक्वायर की है। जब आप आपकी मदर टंग सीख रहे थे तो आपका फोकस ग्रामर स्टडी पर था या फिर सेंस ऑफ करेक्टनेस या फिर बोलने पर था? क्या आपको एनवायरनमेंट मिला था? जब आपने लैंग्वेज को एक्वायर किया था तब आपको एनवायरनमेंट मिला था? क्या इंग्लिश को आपको एनवायरनमेंट मिला है? जब आपने लैंग्वेज को एक्वायर किया तो आपने कोई राइटिंग पर फोकस किया था या फिर स्पीकिंग पर फोकस था? क्या आपने कोई थ्योरी एनालिसिस की थी या फिर प्रैक्टिकली जो भी एक एक दो दो वर्ड है, चाहे उसका कुछ मीनिंग ना हो लेकिन आपको समझ में ना आए, लेकिन फिर भी आप वो प्रैक्टिकल यूज करते थे? क्या आपके ब्रेन में ट्रांसलेशन होता था उस वक्त? नहीं। सो जो ये जो लर्निंग की जो मेथड है ना, इसमें आपका सिर्फ नॉलेज प्रोड्यूस होता है, ये डिफरेंस आपके सामने रहा। और एक्विजिशन में आपकी एबिलिटी प्रोड्यूस होती है। तो आपको नॉलेज प्रोड्यूस करना है या फिर आपको एबिलिटी प्रोड्यूस करनी है? आप लोगों के सामने मैं एक बार फिर से एक क्वेश्चन ले लेता हूं कि आपको लैंग्वेज को लर्न करना है या फिर एक्वायर करना है? आंसर करिएगा। लर्न करना है, लर्न करना है, लर्न करना, हमें लर्न नहीं एक्वायर करना है। ऑलराइट, ये रहे आप लोगों के सामने रिजल्ट। सबको लैंग्वेज को एक्वायर करना है। सब ग्रामर स्टडी करके बोर हो चुके हैं, पक चुके हैं, थक चुके हैं, इतने सारे ग्रामर रूल्स। अगर मैं भी आज आपको ग्रामर रूल्स पढ़ाना शुरू करूंगा ना, 2 घंटे तक पढ़ाऊंगा, उसके बाद आप भूल जाएंगे, ठीक है? तो ग्रामर रूल पर ज्यादा टाइम पास ना करते हुए लेके चलता हूं मैं आपको। ये है मेरे गुरु डॉक्टर स्टीफन क्रैशिन, और इन्होंने नेचुरली लैंग्वेज को कैसे एक्वायर कर सकते हैं इस पर थीसिस लिखा है 1972 में। और इनका मैंने रिसर्च जो है वो पढ़ा है, फॉर्मल रिसर्च पढ़ा है, स्टडी किया है। मैंने मेरे बच्चों को किस तरीके से लैंग्वेज वो एक्वायर करते हैं वो सीखा है, फॉर्मली नोट डाउन किया है। और वो चीजें जो है एक्वायर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो सारी स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान आपके सामने लाने वाला हूं। और ये है मेरी एक प्रीमियम वीआईपी स्टूडेंट। ये भी आप ही की तरह ग्रामर स्टडी करके बोर हो चुकी थी। एक दिन जब उसने ऐड देखा और उसके बाद पता चला कि उसको, हाँ ये सही मेथड है। उसने बी सिविल इंजीनियरिंग की थी, जानवी राठौड़ अहमदनगर से है। और सिविल इंजीनियरिंग को इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद, वैसे भी उसकी घर की हालत जो है वो उतनी अच्छी नहीं थी, तो उसको जॉब करना जरूरी था, घर की बड़ी बेटी थी वो। और उसने फिर एल&टी कंपनी में इंटरव्यू दिया। अब इंजीनियरिंग के लोगों को ऐसा लगता है कि हमने इंजीनियरिंग की तो बस भाई हाई सैलरी जो है, हाई पेमेंट की जो सैलरी है वो ऐसे चलते चलते आ जाएगी। ये सेक्रेटरी, ये टेबल चेयर मसपे की, ये सारा एसी वगैरह सब होगा। इस तरीके की उनकी मन धारणाएं होती हैं। लेकिन आज का जो जमाना है ना वो बहुत खराब है। डिग्री सबके पास है। बात को ध्यान रखो, सुनो, डिग्री किसके पास नहीं है? सबके पास डिग्री है। पर क्या स्किल है सबके पास? नहीं। बच्ची के पास भी डिग्री थी, उसको भी लग रहा था, लेकिन उसकी इंग्लिश कमजोरी थी। उसको सिर्फ 8,000 की सैलरी मिलती है, 8 या 10,000 की ऐसे कुछ सैलरी मिली। और वो उस पोजीशन में थी कि उसको वो करनी ही पड़ी। लेकिन उसने स्मार्टली देखा कि मेरी जो ग्रोथ है ना वो इंग्लिश में ही छुपी हुई है। उसने मेरा सेशन अटेंड किया, एक्शन लिया, और उसके बाद 3 महीने तक मैंने जैसा कहा वैसा किया। एंड यू विल नॉट बिलीव, उसी कंपनी में जब आईजेपी हुई, इंटरनल जॉब पोस्टिंग हुई, इंटरव्यूज हुए, तो उसको 60 फ्रिकिंग थाउजेंड सैलरी पर मंथ ऑफर हो गई। जिस कंपनी में वो ऑफिस वर्कर थी, उसी कंपनी में वो ग्लोबल मैनेजर बने। दिस इज द पावर ऑफ इंग्लिश। अगर आज की डेट में आपको इंग्लिश आ गई ना, तो आपका करियर कोई नहीं रुक सकता। एक्वायर करना है, राइट 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 राइट।
इंग्लिश अगर आपको नहीं आई, आपके पास 50 डिग्री क्यों ना हो, पीछे से आके लोग आपके आगे चले जाएंगे कम एक्सपीरियंस में। कब जिंदगी में आगे बढ़ेंगे? जिंदगी भर थोड़ी ना इंग्लिश सीखते बैठना है। टाइप इन द चैट बॉक्स कि आप कितने सालों से इंग्लिश बोलना सीख रहे हो। कितने सालों से, कितने सालों से आप इंग्लिश बोलने के लिए ट्राई कर रहे हो, सीख रहे हो? ऑनेस्टली ऑनेस्टली ये लिखिएगा आप। 15 साल, 2 साल, 2-3 मंथ, 8 8 महीने, या फिर ये साल है? 2 ईयर, 1 ईयर, 5 ईयर? ठीक है। क्या हासिल हुआ आज तक? हासिल हुआ कुछ आपको? नहीं ना। अब मैं जो बोल रहा हूं ना, उस मेथड को ध्यान से समझो। ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। गए तो गए। मैं लिमिटेड स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। आई नो मैं सबकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। इमेजिन करिएगा कि आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली बोलने लगे। इस सिस्टम से ये होगा। इमेजिन करिएगा कि आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना सीख गए, प्रेजेंटेशन दे रहे हो, मीटिंग्स में कम्युनिकेट कर रहे हो इफेक्टिवली, क्लाइंट के साथ, कस्टमर के साथ। आपका कम्युनिकेशन जो है ना वो इम्प्रूव्ड है, आपके बोलने में क्लैरिटी है, बेटर वर्ड्स में आप आपके नॉलेज, स्किल, आइडियाज को प्रेजेंट कर पा रहे हैं। आपको इंटरनेशनली ट्रैवल करने की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, आपको रिकग्निशन और प्रमोशंस मिल रहे हैं, और आप एक वैल्यूएबल एसेट बन चुके हो। हम वैल्यूलेस पैदा होते हैं, जब पैदा होते हैं तो हमारी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बीतती जाती है, हर साल हम कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते हैं, हमारा कुछ कैरेक्टर जो है ना वो अपग्रेड होता है। आज की डेट की सबसे बड़ी डिमांड आपकी लाइफ की ये है कि आपको आपका कैरेक्टर अपग्रेड करना है। ठीक है, अपने आप को अपग्रेड करना है। वो गेम्स की लेवल नहीं होती है, पहली, दूसरी, तीसरी, वो थोड़ी सी नॉर्मल होती है। उसके बाद फिर आपको हाई लेवल पर जाने के लिए आपका कैरेक्टर भी अपग्रेड करना होता है। ये गेम ही तो है। जिंदगी आपका गेम ही है। बाकी के लोग आपसे आगे जा रहे हैं, आप पीछे रह रहे हो। आपके अलग अलग टास्क है, आपके भी कुछ प्रॉब्लम्स है। जरूरी नहीं कि इंग्लिश का ही हो, बाकी के भी प्रॉब्लम किसको नहीं है। सबको काउंटर करना है, सबको सॉल्व करके जिंदगी में आगे बढ़ना है, रोल मॉडल बनना है। आई नो आपके पास जितना पोटेंशियल अभी है, उतना पोटेंशियल आपने खुद के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया। आपके अंदर का रोल मॉडल, यानी कि आपके पास इतना नॉलेज तो है कि आप अपने नॉलेज से किसी और की लाइफ में एक अच्छा चेंज ला सकते हैं। दूसरों की जिंदगियों में आप एटलीस्ट डिसीजन अच्छे ले पाए, ऐसा आपका ऑरा या फिर आपका आपकी पर्सनालिटी है। राइट। सो ये सारी चीजें होगी आपकी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश से। ठीक है, तो पहली चीज हमने समझ ली कि हमें इंग्लिश को एक्वायर करना है। ठीक है। नाउ अब चलते हैं हमारे दूसरे सीक्रेट की तरफ। अब दूसरा सीक्रेट क्या है कि आपको इंग्लिश ना बोल पाने के जो प्रॉब्लम्स है इनको आइडेंटिफाई करना है। अब आपको इंग्लिश ना बोल पाने का सिर्फ एक ही रीजन है, वो है गेट अप एंड सिटीवी। कौन सा? गेट अप एंड सिटीवी। आज तक आपको इंग्लिश नहीं आई है ना, सिर्फ एक ही रीजन है, गेट अप एंड सिटीवी। इट डजंट मीन कि उठो और टीवी देखो। गेट अप एंड सिटीवी ये जो है ना, ये 8 लेटर्स है। सुन रहे हो ना मेरी बात को? हाँ। गेट अप एंड सिटीवी ये जो है ना, ये 8 लेटर्स है। 8 लेटर्स में 8 प्रॉब्लम्स छुपे हुए हैं। अब इनमें से आपके कौन कौन से प्रॉब्लम्स है ये आपको समझना है, और उसके बाद फिर हम इन प्रॉब्लम्स को कैसे फिक्स करेंगे, इसके लिए इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस एक डेमो सेशन के थ्रू हम करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर अगर आपको मेरा सिस्टम पसंद आए तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो फिर। ऑलराइट, पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या ये सेशन आपको वर्थ लग रहा है? क्या मैं उन स्टूपिड इडियोटिक टीचर्स की तरह बोलता हूँ जो हर किसी को मिले हैं आज तक? कुछ अलग बोल रहा हूँ? लग रहा है ना मैन ऑन मिशन की, जिसके पास कुछ पर्पस है या फिर कोई नॉलेज है, यू ही रैंडम कुछ ही बोलते जा रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? यस। मेरे जैसा कोई टीचर सुना है, देखा है? नहीं, यूट्यूब पर भी नहीं मिलेंगे। राइट, बिल्कुल अलग लगेगा। ठीक है, ऑलराइट। सो
अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपको इंग्लिश ना आने की 8 प्रॉब्लम है, इसके बावजूद कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई क्यों करना है? मान लो आपका पेट खराब हो गया, आप चले गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपको डायरेक्टली सोनोग्राफी या ऑपरेशन करते हैं क्या? नहीं। वो आपको मतलब चेक करते हैं, स्टेथोस्कोप लगाएंगे, ये सारी चीजें चेक करेंगे, पेट से हाथ फेराएंगे, ठीक है, और फिर वो आपको दवाइयाँ लिख कर देंगे, ठीक, और फिर आपको 2 दिन के बाद आने के बाद चेक करने के लिए कहेंगे कि मतलब आपका पेट दर्द कम हुआ है या नहीं। अगर कम नहीं हुआ तो फिर उसके बाद सोनोग्राफी या फिर ऑपरेशन करेंगे। इस तरीके से होता है ना। स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि उनको प्रॉब्लम क्या है। मतलब प्रॉब्लम दिखा कुछ और रहे हैं, दवाइयाँ कुछ और ले रहे हैं, और फिर बाद में बोलते हैं कि सर फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। ठीक है, आज वंस एंड फॉर लाइफ आपको प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है। प्रॉब्लम कौन कौन से हैं? पहला, ग्रामर। ग्रामर की वजह से आपको इंग्लिश नहीं आएगी। आज के बाद इंग्लिश ग्रामर स्टडी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब ग्रामर स्टडी किए बगैर ग्रामेटिकली करेक्ट कैसे बोलना है, ये भी मैं आपको गाइड करूंगा। सिर्फ आपके दिल के क्वेश्चन, आपके कंफ्यूजन्स आपके सामने लाकर मैं भाग नहीं जाऊंगा, ठीक है। पूरी तरीके से आपको ग्रामेटिकली करेक्ट कैसे बोलना है और कैसे आप फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली स्पीच प्रेजेंटेशन दे सकते हो, यहां तक मैंने जर्नी डिसाइड की है। याद रखो, मैंने ये जर्नी 11 लैंग्वेजेस में तय की है। इतने दिनों से आप अंधेरे में भटक रहे थे, मेरे हाथ में टॉर्च है, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। चलना ना चलना आपके ऊपर डिपेंड है। पहली चीज, आज के बाद ग्रामर स्टडी करने की जरूरत नहीं है। आज के बाद किसी भी यूट्यूब टीचर ट्रेनर के वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आज के बाद आपको इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश सॉन्ग, फन स्टोरीज या फिर क्या कहते हैं कि न्यूज चैनल देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इनिशियल लेवल में आपको नहीं करना है। जब सेकंड लेवल में जाएंगे तो मैं आपको खुद सजेस्ट करूंगा कि आपने क्या करना है, क्योंकि पहले हम अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान दे रहे हैं। इंडिया में लोगों को लगता है कि इंग्लिश मूवीज सबटाइटल के साथ या फिर सॉन्ग्स सुनेंगे देखेंगे तो इंग्लिश आ जाएगी। जी नहीं। आपको लगता है किसी को दुनिया में अगर हिंदी सीखनी है तो वो हिंदी गाने सीखकर उसे इंग्लिश आएगी? बिल्कुल नहीं। ला ला ला, साजना, पिया, मोहब्बत, इश्क, प्यार, बस ये 2 4 वर्ड छोड़ के वो कुछ सीखेगा नहीं। ये जो गाने और ये जो बोलते हैं ना टीचर की सबटाइटल के साथ इंग्लिश सुनो देखो, आपको आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की एबिलिटी बढ़ानी है या फिर रीडिंग की एबिलिटी बढ़ानी है? मेरे ये जो आंसर्स है ना, इनके दिमाग में जब जाते हैं ना तो वो, कोई अगर इंग्लिश टीचर रहेगा ना तो वो मुझसे हेट करने लगता है, क्योंकि मैं लॉजिकल चीजें बोलता हूँ। जो लोग कहते हैं कि आपको इंग्लिश मूवीज देखो नेटफ्लिक्स पर या फिर इस पर सीरीज देखो सबटाइटल के साथ, अरे सबटाइटल के साथ देखोगे तो आपका एक 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 आंख जो है वो सबटाइटल पढ़ती है, एक एक चीज वो ऊपर देखती है। और सबटाइटल पढ़ने से आपकी सिर्फ रीडिंग की एबिलिटी बढ़ेगी, स्पीकिंग की कहाँ से बढ़ेगी? बहुत सारे टीचर ट्रेनर कहते हैं टॉक टू योरसेल्फ, टॉक टू योरसेल्फ, मिरर के सामने देखो और टॉक टू योरसेल्फ। कभी जिंदगी में किया है? अगर ऐसा करोगे ना लोग पागल समझेंगे। क्या आपने कभी देखा है किसी को कि वो आईने के सामने बैठा है और वो मतलब बात कर रहा है? सोचना अलग बात है। सो इनके ये जो इंग्लिश सीखने के ये जो नुस्खे हैं ना, ये बड़े ही नाकामयाब है। इनको बस चल छोड़िए। मेरा पहला जो प्रॉब्लम है आपका वो है ग्रामर का, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम है, आज तक आपको एनवायरनमेंट नहीं मिला। आज तक आपसे कोई इंग्लिश में बात करे, आपको कोई गाइड करे, किसी के साथ आपने इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस हो, कहाँ आपने सही किया और कहाँ आपने गलत किया, और कहाँ हम उस गलती को सुधार के अच्छे से बोल सकते हैं, इसका गाइडेंस करने वाला कोई नहीं मिला। आपकी पढ़ाई जो है वो मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम, आपकी मदर टंग से हुई है। एनवायरमेंट नहीं मिला, और एनवायरमेंट अगर आपको मिलेगा तो बिलीव मी, एनवायरमेंट अगर आपको मिलेगा तो आपको ग्रामर स्टडी करने की जरूरत नहीं होती। ये बात आप मतलब आपको भी पता है, क्योंकि आपने इसी तरीके से एनवायरमेंट में रहकर आपकी मदर टंग सीखे, ग्रामेटिकली करेक्ट। तीसरा प्रॉब्लम है आपका ट्रांसलेशन। आप हमेशा ट्रांसलेशन करते हो। टाइम की कमी की वजह से मैं ट्रांसलेशन पर ज्यादा फोकस नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन ट्रांसलेशन ही आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जब भी कोई इंसान आपसे कुछ बोलेगा इंग्लिश में, तो उसने क्या बोला है वो समझने के लिए आप ट्रांसलेट करके समझते हो, और फिर सोचते दिल में हिंदी में हो। फिर कुछ आई एम इज आर वाज वेयर के लिए सोचते हो, फिर कुछ वर्ड्स को आपने इंग्लिश में क्या कहना है उसके लिए सोचते हो। फाइनली पूरा सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करके बोलना होता है। सामने वाला इंसान क्या है, एक सेंटेंस बोल के रुक जाएगा कि हाँ भाई अब तुम बोलो, ट्रांसलेशन कर लो, मेरे पास टाइम ही है। 3 सेकंड तक अगर आप सामने वाले इंसान के साथ बात करते वक्त रुक गए,
जैसा मैं अभी रुका, सामने वाला इंसान बात नहीं करेगा, वो आपको मुंह पर ही टाटा बाय बाय कह के चला जाएगा। तो आपके पास 3 सेकेंड है, रिस्पॉन्स टाइम आपका ज्यादा है, रिस्पॉन्स टाइम हमें कम करना है। 3 सेकेंड में आपको ग्रामर के इतने सारे रूल्स और ट्रांसलेशन को ये करना होता है। आपका ब्रेन हैंग हो जाता है, इन प्रोसेस को मतलब हैंडल नहीं कर पाता। वो 90s के लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, कुछ भी कर लो कि मतलब 2 GB रैम का अगर कोई मोबाइल है, 8-10 एप्लीकेशन उसके ऊपर ओपन कर दिए तो वो हैंग हो जाता है। एग्जैक्टली उसी तरीके से आपका ब्रेन भी हैंग हो जाएगा। और इंसल्टिंग फीडबैक अगर आपको मिलेगा, आपको इतनी अक्ल नहीं है, बाकी सबको समझ में आ रहा है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, पागल हो क्या? इस तरीके से अगर आपको फीडबैक मिलेगा, या फिर आपको लोग इंसल्ट करेंगे, या फिर आप पर हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे ना, तो फिर आप अंदर से ही चुप हो जाते हो कि भाई इज्जत मत गवा, मातृभाषा की जय जयकार। इसी डर्टी एक्सपीरियंस की वजह से, इसी डर्टी फीलिंग्स की वजह से बहुत सारे लोगों ने इंग्लिश सीखना बंद कर दिया है। बहुत सारे ने तो इसी इसी एम्बैरसिंग फीलिंग की वजह से इंग्लिश को अपना दुश्मन माना है। अंडरस्टैंडिंग देखिए, जैसे कि अभी किसी ने कहा था कि सर अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग कमजोर होने की वजह से प्रोसेस नहीं कर पाते। प्रोसेस नहीं होगा तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। प्रोनाउंसिएशन वीक है, प्रोनाउंसिएशन हम सबसे आखिरी में सॉल्व करेंगे। यही तो मॉर्फोलॉजिकल कंफ्यूजन है। आप इंग्लिश फ्लुएंसी तक पहुंचे ही नहीं हो, चले आप प्रोनाउंसिएशन को फिक्स करने। कैसे? ये उल्टी खिचड़ी पक जाएगी आपके ब्रेन में। ये जो प्रॉब्लम्स है जो है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें फिक्स करने हैं। पहले तो आपका ट्रांसलेशन बंद करना है, ठीक है? ट्रांसलेशन जब बंद होगा तभी आप इंग्लिश में सोचने लगेंगे। आपको ह्यूमन ट्रांसलेटर बनना है या फिर इंग्लिश में सोचने के लिए हमें आपका ह्यूमन आपका ब्रेन इंग्लिश में इवॉल्व और एग्जिस्ट करना है? आंसर में, आपको ह्यूमन ट्रांसलेटर बनना है या फिर आपको डायरेक्टली आपका ब्रेन इंग्लिश में इवॉल्व और एग्जिस्ट करना है? मैं जब भी ये यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम खोलता हूं ना, तो बस ये मूर्खों की फौज आ जाती है सामने। दाल में कुछ काला है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसकी इंग्लिश क्या होगी, हमका की इंग्लिश क्या होगी। अरे ये बच्चों को ट्रेन ही इस तरीके से कर रहे हैं कि उनको प्रोग्राम कर रहे हैं इंग्लिश में सोचने के बगैर, वो ट्रांसलेशन में ही जा रहे हैं। समझ रहे हो ना? तो प्रोनाउंसिएशन, कॉन्फिडेंस, थिंक इन इंग्लिश, जिस दिन आपका ट्रांसलेशन बंद होगा उस दिन से आप इंग्लिश में सोचने लगोगे। और आखिरी जो चीज है, वोकैबुलरी वर्ड्स। ई स्वयं इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम के थ्रू हम आपके ब्रेन में 1,20,000 से ज्यादा वोकैबुलरी वर्ड्स का कॉम्बिनेशन आपके ब्रेन में इंस्टॉल करेंगे, प्रिंट करेंगे। ये सारी चीज होगी। क्या आज तक आपको ये 8 प्रॉब्लम किसी यूट्यूब टीचर्स, किसी भी टीचर ने आपको बताया है? आंसर में, जाने अनजाने में कोई अगर हमें अच्छी चीज मिल गई ना, तो वो सच में अच्छी है या नहीं, ये इंसान को जब तक समझ में नहीं आता ना, तो इंसान का दिमाग भी काम नहीं करता। मैं चाहता हूं कि आप मेरी बातों पर नहीं, मैं जो कह रहा हूं ना उस पर विश्वास करें। क्या ये यूट्यूब टीचर्स आपके इन 8 प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकते हैं? क्या इनको पता है ये प्रॉब्लम्स भी है? क्या अगर आपके ये आटो के आटो प्रॉब्लम्स अगर फिक्स हो गए, तो क्या आपको इंग्लिश आ सकती है? क्या आप लोगों को इंग्लिश आ सकती है? अब ये जो 8 प्रॉब्लम्स है ना, इसमें से 4 साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। थोड़ा सा चलिए मैं आपको मतलब इतने इन डिटेल, जैसे डॉक्टर कोई दवाइयाँ लिख कर देते तो उसके इंग्रेडिएंट नहीं बताते, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी सी और डीप इंफॉर्मेशन बताता हूँ। अब ये जो 8 प्रॉब्लम है ना, इसमें से 4 आपके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये हम आपके दिमागी तौर पर फिक्स करेंगे। 4 कौन कौन से? ट्रांसलेशन, अंडरस्टैंडिंग, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस खैर दिल में होता है, बट उसका कहीं ना कहीं मेंटल कनेक्शन होता है। और थिंकिंग इन इंग्लिश। ये 4 आपके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ये 4 साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लगता है, इसी के ऊपर डिपेंड है आपको कितने जल्दी इंग्लिश आएगी। कोई चीज किसी को समझने के लिए 10 घंटे काफी होते हैं, तो वही चीज किसी और को समझने के लिए 1 घंटा काफी होता है। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर डिपेंड है कि आपको कितने जल्दी इंग्लिश आएगी। लेकिन मोटा मोटी अगर आप मेरे सिस्टम को फॉलो करोगे तो 28 से 42 दिनों के अंदर आपको इंग्लिश आ जाएगी। यानी कि ये जो फिल्टर्स आपके ब्रेन में पड़े हुए हैं ना, गेटअप एंड सीटीवी, ये इनको निकालना है। इनको निकाले बगैर आप इंग्लिश में सोच भी नहीं सकते, इंग्लिश बोल भी नहीं सकते। तो इन फिल्टर्स को निकालने के बाद होगा ये कि जब भी आप इंग्लिश में सुनोगे, you will think in English and automatically you will speak in English, just like my premium VIP students.
विष्णुप्रिया नायर, जानते होगे आप इसको, इंस्टाग्राम ट्विटर पर ये, या फिर क्या क्या था वो, टिकटॉक क्या कुछ था वो, सेलिब्रिटी। तो उसका भी यही प्रॉब्लम था कि उसको इंग्लिश नहीं आ रही थी। अब इतनी बड़ी स्टार हो गई तो आपको इंग्लिश आना ही चाहिए, अगर आपको इंग्लिश नहीं आएगी तो लोगों को ये लगता है कि बस ये खैरात में आपको मिला है, डिजर्व भी नहीं करते, राइट। तो उस लोगों को भी थोड़ा सा अचंभा लगा था, लेकिन उसके बाद उसने समझा, देखा किस तरीके से ये सिस्टम काम करेगा, एक्शन ले ली, कोर्स ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद वो फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख गई। ये मेरे और एक स्टूडेंट है, एक्चुअली में ये टीचर है। यूट्यूब पर इनका स्मार्ट इंग्लिश टीचर नाम से, स्मार्ट इंग्लिश क्लासेस नाम से यूट्यूब टीचर है, ट्रेनर है। ये भी पहले ग्रामर स्टडी कराते थे, लेकिन इन्होंने सिस्टम को देखा, सुना, समझा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से इन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की और पढ़ाना भी शुरू किया। एंड यू विल नॉट बिलीव मी कि वो आज लगभग 5 से 7 लाख रुपए पर महीने कमा रहा है सिर्फ इंग्लिश से। ये मेरे और एक स्टूडेंट है, साई पाटिल, and he says this is the perfect English learning system for beginners. My personal trainer Amol was so energetic, and I'm so lucky to have a teacher like him. Thank you, Amol sir. You are the world's best teacher. लेकिन मैं दुनिया का बेस्ट टीचर नहीं हूँ। दुनिया के बेस्ट टीचर मेरे गुरु डॉक्टर स्टीफन ट्रैशिन। ना अब तक हमने 2 सीक्रेट देखे कि भाषा को हमने लर्न नहीं करना है, वी हैव टू एक्वायर, वी हैव सॉर्टेड आउट आवर आई मीन मॉर्फोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ओके। आपके जो कंफ्यूजन्स है, प्रॉब्लम्स है, वो आइडेंटिफाई कर लिए। 8 प्रॉब्लम के सिवा कोई 8वां आई मीन 9वां प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक प्रॉब्लम का आप 2-2 नाम से जान सकते हो कि सर मुझे डर लगता है, कॉन्फिडेंस नहीं है, राइट। ये हमने देख लिया। अब तीसरा सीक्रेट कि आपको एक्वायर करना है, किस तरीके से करेंगे, बोलना सीखना है तो किस तरीके से करेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू एक्वायर इंग्लिश लाइक योर मदर टंग? कितने लोग अभी अमेजिंग सेशन के लिए तैयार है, जिसमें आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस होगी, जिसमें आपका इंग्लिश स्पीकिंग माइंड डेवलप होगा, जिससे बिना ग्रामर रूल में मुझे ग्रामेटिकली करेक्ट बोलना सीखना है तो कैसे सीखना है, ट्रांसलेशन को हम कैसे बंद करेंगे, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएंगे, एनवायरमेंट कैसे मिलेगा, प्रोनाउंसिएशन कैसे शार्पर होंगे, इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कैसे होगी, और आपको एनवायरमेंट कैसे मिलेगा। क्या इसके लिए तैयार हो आप? आर यू रेडी गाइज? ready, okay. Now for next 15 to 20 minutes I'll be speaking only in English. Now you just have to focus on listening, don't translate, okay. I'll be telling you a simple story, then I will tell you few words, few hard words which I'm going to be using in the story, and then I'll explain those hard words in simple spoken common English, okay. Then I'll ask you a few questions, you have to answer those questions in full sentences. First you have to speak. I don't care where you are, how many people around you, you just have to speak the answer, and then just you try to type the answers in the chat box. Engage yourself fully in the grammar stories, because this is the first and last time you are gonna get this natural language learning exposure and experience. And finally, when I'm going to tell you that you have to narrate the story in your words, try to narrate, try to tell the story in your words, okay? So here we go. Listen it very carefully. मैं आप लोगों को किस तरीके से इंग्लिश बोलना सिखाने वाला हूँ, ये देख लीजिएगा, alright? Now मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा. I'm going to tell you the story. Scooby-Doo, a story of Scooby-Doo. There was an agile dog, okay? There was an agile dog. Now, what do I mean by agile? Now, agile means someone who can walk really very fast, or someone who can run very fast, someone who can move very fast, who is active, who is not slow, sloppy. That's called an agile. So there was an active dog. There was an agile dog. His name was Scooby-Doo. What was his name? His name was Scooby-Doo. And he was 8 feet tall, super big dog. He was 8 feet tall, super big, gigantic big dog. He was extremely famished. He was extremely famished. Now here is a new word, famished. What do I mean by that? Famished means, if you are famished, that means you are hungry.
You want to eat something. You don't want to drink something. That's thirsty. That's dehydrated. Okay. So if you are famished, that means you are hungry. You are starving. You want to eat something very badly. So there was an active dog. There was an agile dog. His name was Scooby-Doo. He was 8 feet tall, big dog, and he was extremely hungry. He was extremely famished. So he ate 4 ice creams. So he ate 4 mango flavored ice creams. Okay. So he ate 4 mango flavored ice creams. Okay. This is a little stupid, idiotic story or trailer or demo, whatever you call. Now I'm going to ask you the questions on the story. Are you ready to answer? If yes, try to answer this first question. Was there an agile dog or a cat? First, you have to speak, okay? Don't care about who are around you. Just speak it out loud. Try to give answers in the full sentences. Just speak it up, okay? You have to train your brain to think in English. Don't translate, okay? This is English mind training. Okay, so there was an agile dog. Aditya Rana, Sumit, Sumi, there was a dog, but yes, there was a dog, but he was an agile dog. Okay, try to add that an agile dog. Okay, we are programming your brain to use a and the articles also. Okay, there was an agile dog. Mehboob Ghazi. All right, great. So, what was the dog's name? What was his name? Was his name Bruno? Was his name Scooby-Doo? Or was his name Rhino? Was his name Moti? No. Was his name Tommy Tiger? No. What was his name? Wasif. Yes. His name was Scooby-Doo. Anwar. Sumi. Right. Scooby-Doo. Seema. Arshad Ali. Right. You guys are beautiful. You guys are excellent, quick, and fast. I love this. Okay. So, what was the dog's name? The dog's name was Scooby-Doo. What was the height of Scooby-Doo? Was he 6 feet tall or was he 8 feet tall? Big dog. How big was Scooby-Doo? What was the height of Scooby-Doo? The height of Scooby-Doo was 8 feet, 4 feet, 6 feet, 8 feet tall, right? Ansari. The dog was 8 feet tall, right? The dog was 8 feet tall. Was he a little dog or a big dog? He was big dog, super big dog. And was he famished or was he thirsty? Now here is the word thirsty. Thirsty means if you want to drink water, that means you are thirsty. Right now, I'm thirsty. I'm not famished. So, was the dog famished or was he thirsty? He was famished. He was famished. Was he starving or was he dehydrated? Now, here are 2 new words, starving and dehydrated. Dehydrated means lack of water, right? So dehydrated means you want to drink water and starving means hungry. So was he dehydrated or was he starving? He was starving. Now, who was starving? Was Amol starving? Oh, no. Amol was not starving. Amol was thirsty, right? And thirsty, right? So Amol is thirsty or Amol was thirsty. All right. Next. What did he eat? What did he eat? Did he eat mango? Did he eat banana? What did he eat? He ate ice creams. He ate 4 mangoes. Ghazi, no, not mangoes. He ate mango flavored ice creams, not mangoes. All right. Yes. How many ice creams did he eat? How many ice creams did he eat? 4 or 8 ice creams. How many ice creams did he eat? And Vari,
Rajkumar. How many ice creams did he eat? 4. That's right. So, last question. Other next question. Did he eat banana flavored ice cream or the mango flavored ice cream? Was it mango flavored ice cream or banana flavored ice cream? Mango flavored ice cream, right? So it was mango flavored ice cream. Okay. Now, कंक्लूड करेंगे इस सेशन को। ये जो अभी छोटा सा ये स्कूबी डू का हमने अभी सेशन देखा या फिर ये डेमो देखा, ये ट्रेलर देखा, इसका कंक्लूड ये करते हैं। अभी पिछली मेथड जो ग्रामर ट्रांसलेशन की मेथड है वो तो आपके लिए काम नहीं कर रही है। क्या ये मेथड आपके लिए काम कर रही है या नहीं, कंक्लूड करते हैं। आपने अभी जो आंसर्स दिए, मैंने आपको स्टोरी बताई, वो पूरी इंग्लिश में थी, ठीक है, हार्ड वर्ड्स भी बताए। क्या आपने वो आंसर्स कैसे दिए? क्या आपने मेरे पीछे रिपीट किए? क्या आपके ब्रेन में वो ट्रांसलेशन हुआ? क्या आपने वो अंडरस्टैंड किए, प्रोसेस होने दिए और फिर आपने आउटपुट दिया? कैसे हुए? टाइप पी अगर ये आंसर आपने प्रोसेस किए और आपने उसके बाद दिए, टाइप पी। आदित्य राणा, टाइप पी अगर आपको लगता है कि ये सच में प्रोसेस हुआ है आपके ब्रेन में और उसके बाद ही आंसर्स आए हैं। लिसन एंड रिपीट की ये एक्टिविटी नहीं हुई ना? क्या ये एक्टिविटी आपकी हाउ आर यू, हाउ कैन आई हेल्प यू लेवल वाले इंग्लिश की इंग्लिश जैसी थी या फिर कुछ एक्स्ट्रा अमेजिंग एक्टिविटी लगी? मैंने आपको स्टोरी बताई, स्टोरी को आपके ब्रेन में इंजेक्ट किया। 8 फीट का डॉग आपने नहीं देखा तो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी, उस पर आपको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से क्वेश्चंस पूछे, आपको प्रोसेस करने के लिए कहा, आपने धीरे धीरे एक एक दो दो वर्ड में बोला भी और आपने लिखा भी। दैट्स ट्रू इंग्लिश माइंड ट्रेनिंग। जब आपने जिम जिम लगाया उसके बाद जो आप वजन उठाते हो ना, आपके पैरों में जान आ जाती है। वैसे ही ब्रेन के भी मसल्स होते हैं, ब्रेन के मसल्स में भी जान आती है, मसल्स में वो पावर आती है। और ऐसे ही धीरे धीरे हर दिन प्रैक्टिस करने से आपका इंग्लिश, आई मीन आपका ब्रेन जो है वो इंग्लिश में इवॉल्व और एग्जिस्ट हो जाएगा। यानी कि आपकी क्रिटिकल लाइफ के डिसीजंस डायरेक्टली आप इंग्लिश में ले सकते हो। राइट? अमेजिंग था ये, राइट? नाउ अब चलो मान लिया सर ये सेशन अमेजिंग था या फिर ये मतलब आपकी जो मेथड है ये सही है, बेस्ट है, लेकिन अब हमें ये बताओ कि मान लिया आपने कहा कि ग्रामर स्टडी करने की जरूरत नहीं है, मान लिया, लेकिन ग्रामेटिकली करेक्ट कैसे बोलेंगे? ग्रामेटिकली करेक्ट कैसे बोलेंगे? क्या आपके दिल में ये सवाल आया है? बिना ग्रामर स्टडी के इंग्लिश बोलना सीखना है, लेकिन ग्रामेटिकली करेक्ट कैसे बोलेंगे? क्या ये क्वेश्चन आपके ब्रेन में आया है? अगर आया है तो टाइप क्यू, क्यू फॉर क्वेश्चन। मैं आपको बताता हूँ कि बिना ग्रामर रूल में उलझे ग्रामेटिकली करेक्ट कैसे बोलना सीखेंगे। क्या आपको ट्रस्ट आ रहा है इस प्रोसेस पे? लग रहा है ना? जितने 10-12 साल या फिर 2-4-5 महीने या फिर 2-4-5 साल की जो आपकी इंग्लिश लर्निंग की जर्नी है उसको इकट्ठा देखो उस लर्निंग की तरफ, और ये जो पिछला जो 1 घंटा है ना इसको देखो, किस सेशन में आपको ज्यादा वैल्यू लग रही है? इसमें ज्यादा वैल्यू लग रही है या फिर वो पुरानी मेथड में? समझ रहे हो ना? राइट, चलिए अब ग्रामेटिकली करेक्ट बोलना कैसे सीखते हैं ये देखते हैं। नाउ सेम स्टोरी है, आपको क्या करना है, सिर्फ टेंस को गेस करना है कि ये कौन सा टेंस है, ठीक है? नाउ जस्ट लिसन द स्टोरी and guess the tense. There was an agile dog. His name was Scooby-Doo. He was extremely famished, so he ate 4 ice creams. कौन सा टेंस है ये? Past tense? Past tense, past tense, past tense. All right, everyone, past tense है? Great, ठीक है। Now, next. अब मैं आपको इस स्टोरी को अलग अंदाज में बोल रहा हूं, आपने सुनना है और पहचानना है कि ये कौन सा टेंस है। There is an agile dog. His name is Scooby-Doo. He is extremely famished, so he eats 4 ice creams.
कौन सा टेंस? प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट। ऑलराइट, ना मुझे एक बात बताइए, मैं अगर आपको ये कहूं कि आपको ये स्टोरी फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करनी है, क्या आप इस स्टोरी को बना सकते हो फ्यूचर टेंस में? अगर यस, तो ये जो 4 सेंटेंसेस है क्विकली आप पहले बोलेंगे अपने आप, और फिर उसके बाद में लिखो। मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप, चलिए मैं इसको हाइड कर देता हूं, स्टोरी को भी आप रिकॉल कर सकते हो या नहीं, इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर सकते हो या नहीं, उन वर्ड्स को आप बोलते वक्त या फिर लिखने में इस्तेमाल कर सकते हो या नहीं। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। प्लीज राइट डाउन द स्टोरी इन द फ्यूचर टेंस। मान लो आप 2030 में एक स्कूबी डू नाम का कुत्ता है, उसके ऊपर मूवी बना रहे हो। अक्षय कुमार आपके सामने बैठे हैं, अक्षय कुमार को आपने साइन कर लिया, उनकी जो भी फीस है 100 करोड़ की। अक्षय कुमार आपके सामने बैठे हैं और वो बोल रहे हैं कि कम ऑन टेल मी द स्टोरी, एंड नाउ यू हैव टू टेल द स्टोरी इन द फ्यूचर टेंस। इन 2030 there will be an agile dog, there will be an agile dog, भी लगाइए, there will be an agile dog। आदित्य राणा, very excellent बेटा, great। there will be an agile dog, महबूब गाजी, right। रघुनाथ गुप्ता, सुमी, Sumi, well, that's right. There will be an agile dog. He will be 8 feet tall. He will eat 4 mango ice creams. Okay, all right. He will be extremely famished. And what would be his name? His name will be Scooby-Doo, right? Or Rhino, or or Bruno. What would be his name? What will be his name? His name will be Scooby-Doo, right? And what will he eat? He will eat 4 ice cream. Will he be famished or will he be dehydrated? He will be famished, right? He will be famished, right? Yes. So किस तरीके से रहेगी स्टोरी? And how many ice creams will he eat? He will eat 4 ice creams or 8 ice creams? He will eat 4 ice creams, all right? He will eat 4 ice creams or he will be eating 4 ice creams, okay? So इस तरीके से होगी, okay? He will eat 4 ice creams, right? So इस तरीके से जब एक स्टोरी आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हो, सुनते हो, देखते हो, तो वर्ड्स में और सेंटेंसेस में जो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं ना, एम की जगह इज, एम, इज, आर, वॉज, वेयर, फिर वॉज वर कहाँ लगेगा, शैल विल कहाँ लगेगा, यहां से लेके शुड हैव बीन, वुड हैव बीन, विल हैव बीन तक हम सफर तय करेंगे, और ये सेंस ऑफ करेक्टनेस आपका ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। यानी कि कौन सा वर्ड कौन से वर्ड के साथ जाएगा और ग्रामेटिकली करेक्ट साउंड होगा, इसका सेंस आपका डेवलप होगा। ये है ग्रामर स्टोरीज। अब ये ग्रामर स्टोरीज मैंने आपके लिए डिजाइन की है। अभी अगर मैं आप लोगों को कहूं कि ये स्टोरी आपको 4 सेंटेंसेस जो है वो आपको बोलने हैं, ठीक है? तो आप बोल सकते हो, आंखें बंद कर लीजिएगा आपकी, और 4 सेंटेंसेस जो है वो आपको अपने आप बोलने की कोशिश करनी। देखना कि क्या आप बोल सकते हो या नहीं। 50%, 30%, 40%, 60%, 90%, जो भी हो, ट्राई करिएगा। अगर आपको आ रहा है तो यस आई कैन लिखिएगा। यस आई कैन बोल सकते हो ना? अगर मैं आपको ये स्टोरी लिखने के लिए कहूं, अमेजिंग बात यह है कि मैं अगर इस स्टोरी को आपको अगर ट्रांसलेट करके बताने के लिए कहूंगा ना, तो वो हार जाएगा आपको। लेकिन डायरेक्टली इंग्लिश में बोलने के लिए कहूंगा ना, तो वो इजी जाएगा। सो इस तरीके से ब्रेन को प्रोग्राम करना है, ये पुरानी वायरिंग निकालनी है
और ये नई वायरिंग डाल के आपकी ब्रेन को हमें इवॉल्व और एग्जिस्ट करना है इंग्लिश में बोलने के लिए। जैसे मैंने मेरे स्टूडेंट्स का ब्रेन जो है वो इंग्लिश में इवॉल्व और एग्जिस्ट किया है। ये है मेरे स्टूडेंट कृष्णा सातपुते, इनका भी सेम ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम था, और इनका ये जो प्रॉब्लम है हमने इसी इंग्लिश माइंड ट्रेनिंग के थ्रू दूर किया है। ये मेरी और एक स्टूडेंट है, ये मेरे और एक स्टूडेंट है। मैं इनके बेसिकली आप लोगों को मतलब ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास टेस्टिमोनियल है। वैसे ये एक और है ये तो टीचर है, खैर इनका भी यूट्यूब पर चैनल है, और वेस्ट बंगाल में इनकी 3 फ्रेंचाइजी है, डायमंड स्पोकन इंग्लिश एकेडमी, नसीबा खान। और इस तरीके से मेरे 25,000 से ज़्यादा हैप्पी स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। नाउ, क्या आपको ये सिस्टम, ये मेथड अच्छी लगी? नाउ आपके सामने ये क्वेश्चन है कि वुड यू लाइक टू become a fluent English speaker in record time, just like my premium VIP students?